वी आर बीइंग रॉब्ड बाय आवर इस्लामिक ब्रदर। अगर तो ये मुल्क की बात है तो मैं बगैर पढ़े ही बता रहा हूँ, देयर इज़ नो सच थिंग एज ये ब्रदरहुड ना, ये पाकिस्तानियों के जहन में ही है। दुनिया इस तरह नहीं सोचती, दुनिया बहुत आगे चली गई। Assalamualaikum Junaid bhai, I hope this message finds you well. I would appreciate if you could take a moment to consider my thoughts on our foreign policy. Our foreign policy with India has historically been based on the hostile treatment of its 250 million Muslim population and the situation in Kashmir. We fought in the deserts of Kutch, our soldiers traversed the peaks of Kargil, and we infiltrated Kashmir. But what did we achieve in return? In 1965, Kashmiris exposed Pakistani positions. Indian Muslims demonstrated their nationalism on social media. 1965 में कौन सा social media था? And many contributed to India's scientific advancements, including developing rockets for their country. These are just the direct consequences. The indirect consequences are far greater. Every problem in our country can be traced back to our so called holy war to liberate them. We have faced diplomatic isolation, economic downturns, and the development of nuclear weapons, which resulted in sanctions against us. अच्छा, ये जो न्यूक्लियर वेपन वाली बात है ना, तो इस पे ज़रा ढूंढिएगा। एक नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट की बीवी का मर्डर हुआ था इस्लामाबाद में। ये मैंने कल टिकटॉक देखी थी। खैर, आई शुड रीड मोर ऑन दिस, बट आई एम जस्ट रेफरेंसिंग अ टिकटॉक फॉर नाउ। इट वाज अ ढंग का अकाउंट, एंड दैट लेडी वाज नॉट लिविंग टू फार फ्रॉम अब्दुल कदीर खान हाउस। तो इस पर ज़रा पढ़िएगा। एनीवे, तो जो न्यूक्लियर सैंक्शंस भी जो थी ना, वो इल्ज़ाम था कि वी हैव बिन सेलिंग allegedly to North Korea, Iran, Libya, and there was one more country, right? Acha. Meanwhile, our common folk in Pakistan have struggled without clean water, electricity, or gas, while Indian Muslims lived relatively carefree lives in the history of India. I feel the Muslim world takes advantage of our sympathy for them. Put an Indian and Pakistani in front of a Turk, and most of the time they will choose the Indian. Why? Because they are perceived as better workers, among other reasons. Now put a Turk and a Greek in front of a Pakistani or an Azeri or an Armenian. The answer 100% of the time would be Muslim one. We bring religion into our geopolitics as we should. No, we shouldn't. But our Muslim brothers do not. Pakistan is the only country still clinging to the long lost dream of pan Islamism, to the extent that we don't even recognize Armenia, yet Azerbaijan does. The only way forward is to confront this exploitation by Arabs, Turks, and other Muslim states. We need to remove religion from our foreign policy and focus on becoming a better moderate Islamic state. In an attempt to say, sorry, I got your tone puri different. अब मैं आपका point समझ गया हूँ. My apologies. In an attempt to save the 250 million Muslim of India, over whom we have no administrative control, we have sacrificed the 250 million Muslim in our own country, and our lives are not as important to the rest of the Muslim world. This brotherhood seems designed to exploit us. Inshallah, we will realize this and become a successful state. It's time to put Pakistan first. What are your thoughts? देखिए, मैं जब MBA करने की कोशिश की थी ना, तो हमारे जो टीचर होते थे सऊद बिन मसूद साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स क्या थे, तो मैंने बोला इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। ही स्टॉप मी देयर, ही सेड इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर क्या होती है। अब चूंकि मैं रट्टा मार के पढ़ा था तो मुझे उनका क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस की कोर होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट, ना ज़्यादा दोस्ती, ना ज़्यादा दुश्मनी, सेल्फ इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान ने ना कभी भी अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखा। पाकिस्तान ने हमेशा ये ख्वाब देखा और दिखाया लोगों को ग्लोबल पैन इस्लामिज़म का, कि जी काशगर से लेके हिमालय से लेके ट्रिपोली तक और पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है ना, एक नेटो टाइप की वो होगी दुनिया। अब उस तरह नहीं चलती। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पिछले 100 साल से चल रहा है। एंड देन अगेन दीज कंट्रीज डोंट। अबे यार, अभी मुझे जिस तरह जलील करके वो एयरपोर्ट पे बोला है पाकिस्तानी देखे मुंह बनाया है, ये हमारे ही जहनों में ये इस्लाम पैन इस्लामिज़म, ये दुनिया इस तरह नहीं सोचती। वही वाली आपने जैसे बात की ना कि अगर टर्क और ग्रीक होगा तो हम टर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बिकॉज ऑफ मुस्लिम। देखें, दुनिया इस तरह नहीं चलती। हम अगर ये देखते हैं कि दुनिया भर में
अगर बिल गेट्स, सत्या नडेला, बिल गेट्स तो खैर खुद नहीं चूज़ करता, माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड चूज़ करता है, सत्या नडेला, तो वो ये नहीं देखते कि अच्छा वो ये इंडियन है और ये पाकिस्तान का दुश्मन है तो हम इसको सीईओ लगाएंगे। वो ये देखते हैं कि भाई ये बंदा जॉब करने के काबिल है कि नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम देखते हैं अच्छा मुसलमान है तो बस रख लो, ऐसे नहीं होता। आप उसकी देखते हो कि भाई उसकी प्रोफिशेंसी क्या है जिस काम के लिए आप एक बंदा रख रहे हो। अब वही वाली बात है आर्मीनिया वाली कि आज़रबाईजान की वजह से हम आर्मीनिया को रिकग्नाइज नहीं करते। इट्स नॉट जस्ट इसराइल जिस पे पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं अप्लाई होता, आर्मीनिया पे भी नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो आज़रबाईजान की उनकी लड़ाई है, आज़रबाईजान उनसे ट्रेड करता है, लड़ाई उनकी है हिस्टोरिकली, वो खुद ट्रेड करते हैं, हम नहीं करते। डेढ़ होशियार। तो ये डेढ़ होशियारी ने जो है ना हमारे मुल्क का जो हाल किया है, ये जो आइसोलेशन है, तो ये है। अब वही वाली बात है कि अब कश्मीर वो कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी कि एक तरफ 70 रुपये का डॉलर, एक तरफ 300 का है, तो भाई अब किधर जाएगा कश्मीरी? एक तरफ 18 घंटे लोड शेडिंग है, एक तरफ फार्मूला 3 या फार्मूला 2 वो हो रही है कश्मीर में, किधर जाएगा वो? अब देखें ना, ईरान और सऊदीया की लड़ाई है, वो भी हमने अपने घर में लड़नी है। अमेरिका की अफ़गानिस्तान से लड़ाई है, वो भी हमने करवानी है। हमने दुनिया भर के रोले साथ लिए और फिर हम सोचते हैं हमारा ये हाल क्यों है। हमारे पंगे हमने दुनिया से ऐसे लिए ना फजूल किस्म के। तो इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। हम पीछे रह गए यार। हम बस अब वही नॉस्टैल्जिक वीडियोस में ही रहते हैं कि वो देखो 60s में PIA ऐसी थी, और एमिरेट्स में जो EK है वो E फॉर एमिरेट्स और K फॉर कराची है। आज वही कराची का बंदा दुबई का वीज़ा नहीं मिल रहा। हम ना पास्ट ग्लोरी में रहने वाले लोग हैं। हम ख्वाब ख्यालों में रहते हैं और ख्याली पुलाव, फ्यूचर के ख्याली पुलाव बनाते हैं। भाई जन्नत तो हमारी है। हमें डिप्लोमेसी ऑनेस्टली आती नहीं है। देखो ना, वही इंडिया रशिया से सस्ता तेल ले रहा था एट द पीक ऑफ यूक्रेन वॉर। हम फ़ौरन पीछे हट जाते हैं, अमेरिका नहीं 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 नहीं, हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं देखते। सो बात ये है कि हम दूसरों के पंगों में पढ़ पढ़ के और हमें बाकायदा इट्स बाय डिज़ाइन, एक्सप्लॉयटेशन हमारी जो है वो बाय डिज़ाइन है कि इनको बस ख्वाब ख्यालों में रखो। हाँ, बात कर रहा था मैं उसकी कि हम पास्ट ग्लोरी में रहते हैं ना, तो अर्तुगरुल तभी तो फेमस है। कोई साइंस बेस्ड ड्रामा बनाने देखते हैं, कितने लोग देखते हैं? कोई भी नहीं देखा। फ्यूचर पे किसी की नज़र ही नहीं है। और बस फ्यूचर में अगर नज़र है तो वो दूसरी दुनिया पे नज़र है। मतलब इस जगह जहाँ रहते हैं उसको जन्नत नहीं बनाना, वहाँ दोज़ख, जंगल का कानून, बदतमीज़ी, बदकारी पीक पे करनी है और फिर जन्नत में जाना है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सो इट्स अबाउट टाइम पाकिस्तान नीड्स टू लुक इनवर्ड। ये दूसरे मुल्कों के लड़ाई झगड़े छोड़े, दोस्ती का हाथ बढ़ा और हर तरफ बढ़ा है। अभी जो SCO हुई, दैट वाज अ वेरी रिमार्केबल स्टेप पाकिस्तान की तारीख में। और अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें, रिलेशंस बनाएं, मिलते जुलते रहें। देखिए, मिलने जुलने से ताल्लुकात बढ़ते हैं, 10 चीज़ें निकलती हैं, 10 काम आपके सीधे होते हैं। हमने बड़ा सफ़र कर लिया और आने वाला वक्त बहुत बुरा है। हम 40 करोड़ हो जाएंगे 25 साल के अंदर अंदर, 50 करोड़ हो जाएंगे, और सॉरी 40 करोड़ हो जाएंगे। वी आर द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लाइमेट चेंज ने जो हमारा बेड़ा गर्क करना है शायद किसी का भी नहीं करना, ये हम इसको रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। और जो है ना, हमें पहले से उसकी तैयारी करनी है। अब देखें, जहालत का एक समंदर बह रहा है हमारे मुल्क में और दुनिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। जब दुबई कतर बन रहा था ना, तो उनको चाहिए थे हमारे इंजीनियर्स, हमारे मज़दूर, हमारे सब कुछ, हमारे फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब जब ये बन गया है ना, उन्होंने बोला चलो बेटा अब आप लोग वापस जाए, अब हम लाएंगे गोरे। अब गोरे भर रहे हैं इसलिए आपके वीज़े, क्योंकि यू नॉट गुड इनफ टू वर्क, यू नॉट कंपैटिबल। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमने ना बस यही बैरूनी साजिश और यहूदी साजिश और ये साजिश, तो यार हम क्यों नहीं करते साजिश? हम दूसरे के यहाँ क्यों नहीं बिगाड़ कर रहे? अगर सारे हमारे यहाँ कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों नहीं एक्सप्लॉइट करते दूसरों को? सोचने की बात है ना, बट सोचने पे ताले हैं भाई। खैर, येस, आई टोटली एग्री विद यू। वी नीड टू stop looking at Arabs, stop looking at Turks, and finally start thinking like a Pakistani. पाकिस्तान अच्छा होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा तो दुनिया को लीड कर सकेगा ना। तो पहले वही ना, अपने घर में 10,000 मसले और आप दूसरे का पेन लेके बैठे हो, ऐसे हो नहीं सकता। ऑफ कोर्स डू एक्नॉलेज एंड डू प्रोटेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं होना, बिल्कुल होना है, मगर साथ ही साथ अपने घर, अपने अब वही वाली बात है, अपना मुल्क जला के अगर किसी ने कुछ की है हरकत या कोई बात की तो अपना मुल्क जला लेते हैं, समझ से बाहर है। तो अपने आप को ठीक करना है पहले, तब दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।